हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, स्पेसिफिकली इन कॉन्केव मिरर। तो डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन, the image we will get is at different positions. So there are total 6 cases, right, that we are going to discuss today. So let us take first case. Now in this first case, what we are doing, we are assuming that the object is at some infinite distance from the concave mirror, yani ki in front of the concave mirror the object is at where the object is at some infinite distance. Now here what do we mean by infinite distance? Infinite distance means it is not like that ki mirror Baroda mein hai and object Ahmedabad mein hai, right? Not that much infinite distance. It means कि डायमेंशंस जो है मिरर के डायमेंशंस उसकी कंपैरिजन में, राइट, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इट इज क्वाइट मच ग्रेटर, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. तो कीप इन माइंड, राइट. Let us consider first of all this concave mirror which I have already drawn. Now consider the principal axis we are taking here, okay, and we know that the center of this spherical mirror, concave mirror, is nothing but the pole. Now we are considering the rays which are coming from the infinity. That's why I am drawing it with the dotted line. Okay, now the rays which are coming from the some larger distance, which is some at infinite distance, it is considered as paraxial rays, yani ki parallel rays. So we have learned previously in previous video the rules for image formation in spherical mirrors. So if you have not seen the rules, kindly go through the video and then watch this video, so it will be very useful and clear for you. बराबर. तो देखो अभी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज कहां से पास होते हैं, तो दे आर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, दिस वे वेरी वेल नो. तो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से इट विल पास. ओके, अगेन लेट अस टेक सम अनदर रे which is also coming from the infinity. So after reflection again it will pass through the principal focus. Now we can take infinite rays from here also. Let's suppose the infinite ray from the infinity distance, it is coming parallel to the principal axis, and after reflection it will also pass through the principal focus. बराबर. तो likewise क्या हो रहा है, ऑल द रेज आर फोकसिंग एट दिस प्रिंसिपल फोकस, यू कैन सी हियर. तो ये जो प्रिंसिपल फोकस पे यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रही है. तो वी कैन से ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इज नथिंग बट एट इंफिनिटी, बराबर, सम लार्जेस्ट डिस्टेंस. इमेज पोजीशन हमें क्या मिल रहा है, तो एट एफ. देन वी कैन सी हियर की इमेज कहाँ पे बन रही है, एफ पे. अभी कैसी इमेज बन रही है, तो इट इज नथिंग बट द पॉइंट साइज्ड इमेज. Okay, because very small, so we can say it as a point sized image. Point size image किसको बोलते हैं, कि ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज बहुत ही छोटा हो. एंड नेचर ऑफ इमेज, सी इट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वी कैन ऑब्टेन इट ऑन द स्क्रीन, so that's why it is real image and it is inverted. Okay, so this is all about first case, very simple. अभी हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से वी आर ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू द मिरर. ओके, केस बाय केस व्हाट वी आर डूइंग, तो वी आर डूइंग ऑब्जेक्ट इज वी आर ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर. तो अभी पहले इंफिनिटी पे था, राइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एट, वी कैन राइट हियर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. अभी केस 2 में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट is beyond C. C means सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, पूरे स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, इंफिनिटी से नजदीक एंड C से थोड़ा दूर. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर अगेन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पोल. नाउ वी आर कंसीडरिंग F somewhat here, and उससे twice we are considering center of curvature at somewhat here. Okay, see here I am drawing an arbitrary
figures, arbitrary ray diagrams. In your answer sheet or in your book, you can use ruler scale to measure this distance, and so it will be exactly at the double. वो सब थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अभी let us consider an object. मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखा देता हूं. हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट. ये हो गया ए बी. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अपराइट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. दिस वी नो, बराबर. एंड वो ऑब्जेक्ट हम कहां रखते हैं हमेशा? तो इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि लेफ्ट साइड टू द मिरर. ओके, अभी क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट से अभी फॉर इजीनेस एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से कोई भी दो रेज को हम क्या करवाएंगे? पास करवाएंगे, यानी कि वी विल ड्रॉ दी टू रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. देखो तो क्या होगा? एक रे में पास करवा रहा हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर. तो इफ द रे इज पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ये हमें पता है. अभी सेकंड में ले लेता हूं. सेकंड रूल जो फर्स्ट वन का वाइस वर्सा है, वो क्या है कि आई एम टेकिंग द रे विच इज पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहां पे आप देख सकते हो कि इमेज जो बन रही है, राइट. लेट मी ड्रॉ विद सम डिफरेंट कलर, तो इट विल बी विजिबल. तो यहां पे जो है वो इमेज बन रही है, बराबर. एंड दिस इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल. एंड क्या है? तो ऑब्जेक्ट से इमेज जो है इट इज समवट स्मॉलर, बराबर. तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या आएगा? तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हम लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज हमें कहां पे मिली? तो इमेज मिल रही है बिटवीन सी एंड एफ. देखो ऑब्जेक्ट यहां पे है, राइट. इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट. इसको हमने कंसीडर किया है ऑब्जेक्ट. एंड ये जो हमें मिला है ये है इमेज. ध्यान रखना, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा दूर. इमेज हमें मिली सी एंड एफ के बीच में. अभी साइज ऑफ इमेज क्या है? तो ऑब्जेक्ट से इट इज समवट स्मॉलर. तो इसको हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड या तो स्मॉलर, बराबर. एंड नेचर ऑफ इमेज ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज वी कैन ऑप्टेट इट ऑन द स्क्रीन एंड इट इज लेफ्ट टू द मिरर. तो रियल. एंड यहां पे तो हमें दिख भी रहा है कि इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है. ये हो गया सेकंड केस. देखो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, तो इमेज यहां पे हमें कहां पे मिली? एफ पे. यानी कि बाद में ऑब्जेक्ट हम थोड़ा नजदीक लेके आए मिरर से, कहां पे? बियॉन्ड सी. तो इमेज हमें कहां पे मिली? एफ से दूर होके थोड़ा हट के कहां पे मिल रही है? बिटवीन सी एंड एफ. यानी कि ये क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर से क्लोजर आ रहा है, इमेज क्या हो रही है? मिरर से दूर जा रही है. ओके, लाइकवाइज यू कैन रिमेंबर. अभी ले लेते हैं थर्ड केस. थर्ड केस में क्या करेंगे? अभी हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी से उठा के एग्जैक्टली सी पे रख देंगे. सी पे मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो लेट अस कंसीडर इट प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल P. Okay, now consider this as principal focus and at somewhat double distance, twice distance, it is center of curvature. अभी ऑब्जेक्ट को हमें रखना है C पे, यानी कि यहां पे रखते हैं हम, राइट. ये A एंड B जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज दिखा रहे हैं. AB इज द ऑब्जेक्ट. अभी क्या होगा? अगेन लेट अस टेक टू रेज, वन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट विल पास पैरेलल, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. सेकेंड रे, इफ इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देखो कहां पे मिल रहा है? एग्जैक्ट सी पे मिल रहा है. एंड ये क्या हो रहा है? तो ए डैश बी डैश, बराबर. सी आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, इसलिए मैं उसको थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं. दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर. एंड देखोगे तो इमेज जो मिल रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज के जितनी है, बराबर. आपको यहाँ पे थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज आई एम ड्रॉइंग इट विद द फ्री हैंडेड डायग्राम. ओके, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? तो वी कैन से ऑब्जेक्ट
इज एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज भी कहाँ मिल रही है, तो इज एट ऑल्सो सी, बराबर। साइज ऑफ इमेज क्या बोल सकते हैं, सेम साइज्ड, सेम साइज्ड एज व्हाट, तो एज ऑब्जेक्ट, बराबर। एंड नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, वी कैन सी। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। तो दीज आर द 3 रूल्स। नाउ विल स्विच ओवर टू द 4th रूल। चलो अभी देखते हैं 4th केस। 3rd केस में क्या किया था, तो ऑब्जेक्ट था कहां पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को मिरर से और नजदीक लेके जाएंगे, राइट। तो और नजदीक लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, क्या होगा, तो सी एंड एफ, सी एंड एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। देखो हम यहाँ पे करते हैं, ये ले लो प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये सेंटर ऑफ मिरर इज पोल। देखो अभी कंसीडर समवेयर हियर प्रिंसिपल फोकस एफ, कंसीडर समवेयर हियर दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने सी पे रखा था 3rd केस में, तो अभी हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो लेट अस ड्रॉ, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, ओके। अभी रेज आर कमिंग, तो एक में ले लेता हूं पैरेलल, ये बहुत सिंपल वाला रूल है एंड इट इज वेरी यूजफुल। तो ये पास हो रहा है प्रिंसिपल फोकस से, दैट इज फिक्स, बराबर। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा रे हम ले लेते हैं, कहां से ले सकते हैं, तो प्रिंसिपल फोकस से हम पास करवा लेते हैं। तो देखो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से अगर ये पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यू कैन सी कि भाई इमेज जो बन रही है दोनों के कॉम्बिनेशन से, राइट, दोनों के इंटरसेक्शन से, दोनों मींस दो रेस के इंटरसेक्शन से वो यहाँ पे बन रही है। तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं इससे। तो देखो ये बन गया ए डैश बी डैश, यानी कि इन्वर्टेड इमेज। तो क्या हुआ इधर, देखो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, यू कैन सी दिस इज ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो बन रही है वो कहां पे बन रही है, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा दूर, बराबर। एंड ऑब्जेक्ट की साइज आप देख सकते हो इमेज की साइज से ज्यादा है, यानी कि वी कैन से समवॉट एनलार्ज्ड, बराबर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन आएगा, वी विल राइट ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, बराबर। इमेज पोजीशन क्या आया, तो इमेज पोजीशन आया बियॉन्ड सी, ओके। साइज ऑफ इमेज वी कैन से एनलार्ज्ड, बराबर। एंड नेचर अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, है सिंपल। अभी लेते हैं केस 5। अभी देखो यहां पे क्या किया था, ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा था। अभी ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके जाते हैं मिरर के एंड उसको रख देते हैं एफ पे, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे, बराबर। तो लेट अस ड्रॉ अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, ओके। क्या होगा देखो, तो लेट अस कंसीडर हियर समवेयर प्रिंसिपल फोकस एंड हियर समवेयर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, एफ पे। तो लेट अस पुट ऑब्जेक्ट हियर एट एफ, यानी कि ये ए बी जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट। अभी लेट अस कंसीडर रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो एक हम ले लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये रूल तो हमें पता ही है। अभी सेकंड हम एक लास्ट वाला रूल था 4th वन, कि अगर ऑब्जेक्ट से रेज पोल पे इंसिडेंट होते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, राइट, ये हमने पढ़ा था। तो ये वाला रूल यूज किया। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या होगा, तो जो इमेज बन रही है, राइट, वो कहां पे बनेगी, तो एट सम इनफाइनाइट डिस्टेंस, आगे जाके कहीं पे दे विल मीट, यानी कि एट सम लार्जर डिस्टेंस। एंड वो इमेज जो होगी वो भी क्या होगी, तो इट इज समवॉट एनलार्ज,
बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे आएगा, हमने एट एफ में लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट एट एफ, बराबर। इमेज पोजीशन कहाँ पे मिल रहा है, तो एट इंफिनिटी, बराबर, सम लार्जर डिस्टेंस। साइज ऑफ इमेज यहाँ पे एक्चुअली एनलार्ज्ड, एंड नेचर ऑफ इमेज स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड, बराबर। ये समझ में आया। ये एक्चुअली यहाँ पे सम लार्जर डिस्टेंस पे दे विल मीट, दे विल इंटरसेक्ट एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो एनलार्ज्ड होगी, ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत ही ज्यादा साइज होगी, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया फिफ्थ केस। अभी है कॉन्केव मिरर का लास्ट केस, दैट इज क्यों, क्योंकि लास्ट केस बिकॉज एफ पे है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट। अभी हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक कितना लेके जा सकते हैं, तो एफ एंड पी के बीच में रख सकते हैं, राइट, क्योंकि पी पोल पे तो एग्जैक्ट हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। तो लास्ट केस क्या हुआ, बिटवीन एफ एंड पी। ओके, तो लेट अस कंसीडर प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल पी। ओके, अभी हम somewhat here consider F, somewhat here consider C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है हमें, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, यानी कि यहां कहीं पे मैं रख देता हूं, ये ऑब्जेक्ट ए बी जो आपको शो कर रहा है, बराबर। अभी रेज ले लेते हम, तो एक पैरेलल रेज कंसीडर करते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस लाइक दिस, एंड एक रे अगेन हम ले लेते हैं जो कि इंसिडेंट हो रहा है पोल से, तो सेम एंगल पे वो होगा। अभी ये देखोगे तो दे विल नेवर मीट एट, राइट, कहीं पे भी दे विल नेवर मीट। ओके, कहीं दोनों को एक दूसरे पे वो इंटरसेक्ट कभी भी होंगे नहीं। तो क्या हो रहा है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो दे अपीयर टू मीट, यानी कि उसको बैक साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ट्रेस, बराबर। तो अगर उसको हम बैक साइड पे ट्रेस कर रहे हैं, देखो दोनों जो रिफ्लेक्टेड मिरर से दोनों को हम बैक साइड पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे क्या बन रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट, बिकॉज यू कैन सी कि ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी, तो बोथ आर डाइवर्जिंग, बोथ आर राइट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों को अगर हम, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे, उसको मैंने बैक साइड पे ट्रेस किया, यानी कि बिहाइंड द मिरर, एंड ये जो दूसरा रिफ्लेक्टेड रे उसको भी बिहाइंड द मिरर मैंने किया, तो वो दोनों यहाँ पे कहीं पे दे आर मीटिंग। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हो कि दिस इज द स्पेशल केस इन कॉन्केव मिरर, कि जहां पे आपको इमेज कैसी मिल रही है, टू द राइट साइड ऑफ द मिरर। बाकी सारे केसेस आपने देखे थे कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज मिल रही है, बराबर, यानी कि लेफ्ट साइड पे मिल रही है। सिर्फ यही केस है कि जिसमें राइट साइड पे मिल रही है, एंड कैसी मिल रही है, इरेक्ट, नॉट इन्वर्टेड, क्योंकि हर एक में आपने देखा था यहां तक कि सब जगह पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, राइट। यहाँ पे भी आपने देखा था कि यहाँ पे भी कैसी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यहाँ पे जो है वो इरेक्ट इमेज बन रही है। तो ये ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या ले लेंगे, तो बिटवीन एफ एंड पोल ऑफ द मिरर, जहां पे हम लिख देंगे बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहां पे मिली, तो हमें इमेज मिली एट दी, या तो हम लिख सकते हैं बिहाइंड दी मिरर, मिरर के बिहाइंड, बैक साइड पे, बराबर, राइट साइड पे। साइज ऑफ इमेज एनलार्ज्ड, बराबर, एंड नेचर ऑफ इमेज यहां पे आएगा वर्चुअल, बिकॉज वी कैन नॉट ऑब्टेन सच इमेज ऑन द स्क्रीन, एंड इरेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऐसा है एंड इमेज भी ऐसे मिले। तो दीज आर दी 6 केसेस। अब हमने देखा कि क्या किया, हमने इनिशियली ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, एंड धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, मिरर के नजदीक लेके आ रहे हैं। तो पहले जो इमेज बन रही थी वो क्या बन रही थी, तो इमेज जो है धीरे धीरे दूर जा रही है, राइट। ऐसे करके आप सारे केसेस सिंपली याद रख सकते हो। थैंक यू।